કેમ છો વહાલા ભાઈઓ બહેનો? આપ સૌ મજામાં હશો અને ટાટ એચએસનું પ્રશ્ન પેપર આપ્યા પછી તમે ખૂબ ઉત્સાહિત છો એવી તમારી બધાની કોમેન્ટ જોઈને મને લાગી રહ્યું છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ કીધું છે કે તમે જે પીડીએફ આપી, જે વિડીયો હતા તેમાંથી મોટાભાગના પ્રશ્નો પૂછાયેલા હતા. એના જેવું જ આપણે આજે ટાટ એચ એટલે કે માધ્યમિક વિષય હિન્દી વિષયની જે પરીક્ષા છે એમાં પણ એટલું જ જબરદસ્ત પ્રદર્શન આપણે કરવાનું છે. મોટાભાગના આવા પ્રશ્નો છે એ પૂછાતા હોય છે. તેમ છતાં આપણે ક્યારેય એવું નથી કીધું કે મેં કીધું એ જ પૂછાણા. ઘણી બધી યુટ્યુબ ચેનલોવાળા છે મોટી મોટી વાતો કરે છે. આખા 100 માર્કના પેપરમાંથી 1-2 પ્રશ્નો આવ્યા હોય તો પણ મોટી મોટી વાતો કરે છે. આપણે એવું કોઈ નથી, કારણ કે આપણે આપણા માટે છે, આપણા પરિવાર, આપણા હિન્દી વિષયના પરિવાર માટે હતું, એટલે એમાં કોઈ બીજી ચર્ચાને સ્થાન નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, માધ્યમિક માટે ધોરણ 9નો અગાઉ એક વિડીયો મૂકી ચૂક્યા છે. એમાં ખૂબ જ તમારો બધાનો સપોર્ટ મળેલો છે. આ બીજા વિભાગની અંદર, બીજા પાઠની અંદર, એટલે કે બીજા સેશનમાં આપણે હવે બાકી રહેલા જે પાઠો છે તેનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ. ખાસ એક વખત પાઠ કે કાવ્ય વાંચી લેવા, ત્યારબાદ આનું સોલ્યુશન કરવું, એટલે તમને વાંચવામાં ખૂબ જ અનુકૂળતા રહેશે અને તમને સરળતાથી યાદ રહી જશે. એક રિક્વેસ્ટ છે કે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ વિડીયો જોવે છે પણ લાઇક શેર કરતા નથી, સબસ્ક્રાઈબ ચેનલમાં બાકી છે, તો એ ફટાફટ કરી લેજો, જેથી કરીને વિડીયો અહીંથી અપલોડ કરતાની સાથે સૌથી પહેલાં તમારા સુધી એની નોટિફિકેશન મળી જાય અને તમારે રાહ ન જોવી પડે અને નવું જાણવાની એક મળે. જોઈએ આપણે હવે વધારે સમય નહીં લેતા, કારણ કે પરીક્ષા નજીક છે. ધોરણ 9ના પાઠ્યપુસ્તક આધારિત MCQ અને તેના જવાબો, અને ખાસ તમારે આની PDF પણ છે, જોતી હોય તો મળી રહે છે. બંનેની નજીવી કિંમત રાખેલી છે. અહીં જે પોસ્ટર તમને દેખાઈ રહ્યું તે QR કોડ ઓરિજિનલ નથી, એ ખાલી નમૂના માટેનો આપેલો છે. તમને જે આ નંબર દેખાઈ રહ્યો છે 9799369656, એના પર વોટ્સએપ કરજો તો તમને બધી માહિતી છે એ મળી રહેશે, કઈ રીતે PDF લેવી, અને એ બધું તમે એને ફટાફટ વાંચી રાખો, જેથી કરીને સૌથી વધારે માર્ક્સ એ તમારે આવે. જોઈએ આપણે હવે પાર્ટ 6થી લઈ અને જેટલું ચાલે એટલું ટૂંકા વિડીયો કરશું, જેથી કરીને વાંચવામાં ખૂબ અનુકૂળતા રહે. તો જોઈએ હવે MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો. મિત્રો, આમાં પહેલો પાઠ છે મેરી બીમારી શા માને લી, જે હરિવંશરાય બચ્ચન રચિત છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે મેરી બીમારી શા માને લી पाठ के लेखक कौन है? हरिवंशराय बच्चन. બીજો પ્રશ્ન, हरिवंशराय बच्चन का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1907 में. आवा प्रश्न નથી પૂછાતા પણ છતાં આપેલા છે. बच्चन जी का निधन किस वर्ष में हुआ था? 2003. बच्चन जी की किस कृति સૌથી શ્રેષ્ઠ है? અહીં ગુજરાતીમાં છપાઈ ગયું છે, જેનું નામ છે मधुशाला. बच्चन जी ने किस विश्वविद्यालय से प्राध्यापक के रूप में कार्य किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय. भारत सरकार ने बच्चन जी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? पद्म विभूषण. मेरी बीमारी शा माने ली बच्चन जी की किस विद्या की रचना है? आत्मकथा अंश. लेखक की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? श्यामा बच्चन. लेखक ने बीमार होने को अपराध क्यों माना है? गांधी जी के लेख के प्रभाव से. लेखक बुखार की गर्मी और तेजी में क्या करते थे? ट्यूशन पढ़ाने और स्कूल जाते थे. बुखार में लेखक को क्या लिखना अधिक सुलभ लगता था? कविताएं. लेखक ने प्लूरिसी की बीमारी में कौन सी कविताएं लिखी थी? 2 चट्टानें अथवा सिसिफस बर्कन अनुमान. विश्राम तिवारी का स्वास्थ्य के प्रति क्या मंत्र था? मार के पीछे भूत भागे. लेखक का अपना सिद्ध किया हुआ मंत्र क्या था? काम के पीछे बुखार भागे. लेखक को शाम को बुखार कितना रहता था? 101 से 102 अंश सेल्सियस. डॉक्टर BK मुखर्जी ने लेखक को कौन सा भयानक रोग होने की आशंका बताई? तपेदिक. मुखर्जी साहब का नुस्खा लेखक को कैसा लगा? मौत का परवाना. लेखक को बीमारी, અહીંયા પણ ગુજરાતીમાં છપાઈ, बीमारी में किस बात की चिंता थी? तो ट्यूशन छूटने और कर्ज की. श्यामा ने लेखक की बीमारी में सुनकर क्या प्रतिक्रिया दी? वह कांप उठी और तुरंत संभल गई. लेखक के पिता ने उन्हें क्या कहकर ढांढस बंधाया? तो हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे. श्यामा ने लेखक को चिंता मुक्त करने के लिए कर्ज के बारे में क्या कहा? तो कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी.
डॉक्टर मुखर्जी ने इलाज के खर्च के बारे में क्या कहा था? पैसे नहीं है तो जाओ मरो। 23वां प्रश्न, लेखक को जीने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा? अच्छा, संघर्ष के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? तो श्यामा के लिए जीने के संकल्प से। लेखक ने एलोपैथ के बजाय कौन सा सस्ता इलाज किया? तो लुई कुने का प्राकृतिक उपचार। लुई कुने के उपचार में क्या करना पड़ता था? तो ठंडे पानी के टब में बैठकर सीट्स बाथ लेना। इलाज के दौरान लेखक का आर्थिक सहकार क्या था? तो किताबों की बिक्री से मिलने वाला पैसा। श्यामा ने अपने पति के स्वास्थ्य के लिए कौन सा महान व्रत लिया था? तो जब तक पति स्वस्थ न हो जाए वह स्वयं को स्वस्थ रखेंगी। लेखक को जब रोग से मुक्त हुआ उस दिन से क्या हुआ? तो उस दिन से श्यामा खटियावश हुई। श्यामा कितने दिनों तक रोगशैया पर पड़ी रही? 216 दिनों तक। श्यामा की मृत्यु कब हुई? 17 नवंबर 1936। लेखक ने श्यामा की मृत्यु को क्या माना? लेखक के विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त न हो पाना। प्लूरिसी शब्द का क्या अर्थ है? तो फेफड़ों की पानी भर जाना। अदायगी शब्द का अर्थ है देना या भुगतान करना। नुस्खा किसे कहते हैं? दवा का विवरण। आत्मनिग्रह का अर्थ क्या है? आत्मा पर अंकुश। लेखक को किससे जीने की प्रेरणा मिली? श्यामा के लिए। बच्चन जी का काव्य संग्रह सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार क्यों मिला? तो किसको मिला? 2 चट्टानें। लेखक के अनुसार बीमारी अमीरों की अरमजदगी है, इसका क्या अर्थ है? तो अमीरों के पास बीमार होने का समय और साधन है, गरीबों को इससे बचना चाहिए। सस्ती पंथा का शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्यामा के त्याग, सेवा और लेखक के संघर्ष को दर्शाना। ત્યારબાદ એ પછીનું કાવ્ય છે સુરદાસ કે પદ। એના રચયિતા છે સુરદાસ। એના જન્મ વિશેનો પ્રશ્ન છે। સુરદાસ के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास किस भगवान से अनन्य भक्त थे? श्री कृष्ण। कवि ने अपने मन की तुलना किससे की? तो जहाज़ के पंछी से। जहाज़ का पंछी जहाज़ से उड़कर फिर कहाँ जाता है? फिर जहाज़ पर ही। सूरदास के अनुसार परम गंगा को छोड़कर कुआं खुदवाना क्या है? दुर्मति। किसे भौरे ने कमल रस चख लिया, उसे क्या नहीं भाता? करील फल। सूरदास ने कृष्ण को किससे समान माना है? कामधेनु समान। कामधेनु को छोड़कर बकरी, छेरी, दूना किसका प्रतीक है? मूर्खता का। बालक कृष्ण अपने हाथ में क्या लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं? नवनीत यानी कि मक्खन। बाल कृष्ण कैसे चल रहे हैं? घुटुरुनी, घुटनों के बल। बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? दधि का। चारु शब्द का क्या अर्थ है? सुंदर। श्री कृष्ण के माथे पर किसका तिलक लगाया हुआ है? गोरोचन का। लोचन शब्द का समानार्थी शब्द है आँख। सूरदास को कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने से क्या प्राप्त होता है? परम सुख। छेरी शब्द का अर्थ है दूसरों के स्थान पर। छेरी का अर्थ है बकरी। अनंत शब्द का इस पाठ में क्या अर्थ दिया है? दूसरे स्थान पर, अन्यत्र। सूरदास ने मुख्य रूप से किन रसों में अद्वितीय रचना की है? वात्सल्य एवं श्रृंगार रस। ત્યાર પછીનો પાઠ છે गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, જે मोहन राकेश द्वारा रचित है। गुलमर्ग की खिड़की के एक रात पाठ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। उसका जन्म, उसके कहाँ हुआ था? जालंधर। उसकी जन्म वर्ष, उसका निधन। लेखक ने किस कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो DAV कॉलेज जालंधर। लेखक ने किस प्रसिद्ध कहानी पत्रिका का संपादन किया? सारिका। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का क्या है? नाटक। इनमें से कौन सा उपन्यास मोहन राकेश द्वारा लिखित है? तो अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, उपयुक्त सभी। इंसान के खंडर और नए बादल के लेखक के क्या है?
कहानी संग्रह। यह पाठ गुलमर्ग की खिड़की से एक रात लेखक की किस कृति से लिया गया है? परिवेश। गुलमर्ग भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? कश्मीर। लेखक को पहली बार गुलमर्ग जाने पर वहाँ कैसा लगा? तो कुछ भी असाधारण नहीं लगा था। गुलमर्ग में किसके घने झुरमुट पाए जाते हैं? देवदारों के। गुलमर्ग के बारे में लेखक ने क्या कहा है? वह एक खुला सपाट मैदान है। लेखक के अनुसार गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता कैसी हो जाती है? धीरे धीरे बहुत गहरी हो जाती है। गुलमर्ग में क्या फूल बनकर उगते हैं? सपने। हरियाली कहाँ तक फैली हुई है? आर पार लाल लाल छतों के ऊपर और आकाश में। सैलानी कहाँ बाहें फैलाए घास पर बैठे रहते हैं? बादलों के पोर्टिको के नीचे। हरियाली का सपना किस में बदल जाता है? कुहासे के फूल में। नन्ही नन्ही पगड़ियों में कैसी लग रही थी? तो पतली पतली और बेबस। सूरज चमकने पर किसका नया सपना जन्मेगा? फूल का। भेड़ बकरियों के रेवड़ कहाँ पदचाप करते प्रतीत होंगे? पगडंडियों पर। गुलमर्ग की रात की खामोशी कैसी हो जाती है? वाचाल। लेखक बरसाती घटा को कहाँ खड़ा होकर देख रहा था? होटल की खिड़की में। बरसाती घटा के ऊपर से गिर जाने पर व्यक्ति को क्या अनुभव होता है? अपने छोटा होने का। बरसाती घटा आने पर कौन कांप जाती थी? धरती और आकाश की छिराएं। हवा तेज होने पर भी क्या तेजी से नहीं बढ़ रही थी? घटा। बिजली की क्रोध लेखक को कैसा अनुभव करा रही थी? तो प्रकाश का भयानक विस्फोटक जैसा। लेखक किस बात के लिए बाहें फैलाकर तैयार था? तो उसका उत्तर है बिजलियों का कहर अपने ऊपर लेने के लिए। अचानक तूफान के रुक जाने पर लेखक को क्या अफसोस हुआ? कि वह तूफान के बराबर का कभी न हो सका। बढ़ता हुआ तूफान रुक जाने पर किसकी तरह हम दौड़ने लगे? कटे पक्षी की तरह। हवा के रुक जाने से लेखक को क्या महसूस हुआ? तो बहुत ऊंचे आसमान से नीचे गिरना। गुलमर्ग में मुद्दतों रहने पर भी व्यक्ति को क्या होता है? तो कोई नया आकर्षण फिर खींचकर ले जाता है। लेखक के अनुसार व्यक्ति बार बार गुलमर्ग क्यों जाना चाहता है? वहाँ के सौंदर्य और आत्मीयता के कारण। तितुलिया शब्द का अर्थ क्या है? तिराहा। रोमांच की शब्द का अर्थ है आनंद लेने वाली। पोर्टिको शब्द का हिंदी अर्थ है बरामदा। दम तोड़ना मुहर का अर्थ है मर जाना। रेवड़ शब्द का अर्थ है झुंड। ત્યારબાદ પછીનો પાઠ છે નિર્ભય બનો, જે ફણેશ્વરનાથ રેણુ द्वारा रचित है। एना प्रश्नों જોઈએ। निर्भय बनो पाठ के लेखक कौन है? तो जवाब से फणेश्वरनाथ रेणु। लेखक फणेश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? सन 1921। रेणु जी का जन्म बिहार पूर्णिया जिले में। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार के रूप में फणेश्वरनाथ रेणु। मेला आंचल रेणु जी का क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास। निर्भय बनो पाठ रेणु जी के किस उपन्यास से लिया गया है? कितने चौराहे। प्रियव्रत राय को सब प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? प्रियोदा। प्रियोदा किस कक्षा में पढ़ता था? मैट्रिक में। प्रियोदा और उसके साथी रविवार की सुबह झोली लटकाकर क्या करने निकलते थे? तो मुठिया वसूलने के लिए। प्रियोदा का दल मुठिया किसके लिए वसूलता था? सन्यासी आश्रम के लिए। प्रियोदा का दल शनिवार को कहाँ जमा होता था? परमान नदी के पार बालूचर पर। प्रियोदा के दल में नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो जवाब आवे से मनमोहन। मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने उसे कैसा लड़का बताया? बहुत तेज लड़का। प्रियोदा ने मनमोहन से भारतवर्ष को किस आदमी का नाम पूछा जिसे भगवान समझते थे? महात्मा गांधी। मनमोहन पढ़ लिख कर क्या बनना चाहता था? वकील। मनमोहन को किस बीमारी के नाम से डर लगता था? हैजा। दल के किस सदस्य को सूरज पहलवान कहते थे? सूर्यनारायण को। सूर्यनारायण हर रोज कितनी दंड बैठक करता था? 100। दल के सदस्यों को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसकी थी?
सूर्य नारायण की। मनमोहन ने पहली बार दल के सामने कौन सा गीत गाया? राम रहीम न जुदा करो भाई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण क्या कर रही थी? तो झिलमिला रही थी। विद्यापति की लाचारी किसे कहा गया? एक लोकगीत को। बालूचर के उस पार से किसने पक्षी पर फायर किया था? तो एक सरकारी अफसर सब डिप्टी साहब अर्दली ने। दल का क्या नियम था जिससे कारण इब्राहिम को माफ़ी मांगनी पड़ी? तो कोई सदस्य अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने अपशब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए। प्रियोदा के अनुसार कितनी गलतियां होने पर दल साथ छोड़ देता था? 10। दल के नियमों को क्या कहा जाता था? रूल्स। वापस लौटते समय मनमोहन को डर क्यों लग रहा था? तो रास्ते में पोस्टमार्टम हाउस होने के कारण। लोगों के अनुसार पोस्टमार्टम हाउस के पास पेड़ों पर कौन रहता था? भूत पिचास। प्रियोदा ने, त्यारबाद नवो प्रश्न से, प्रियोदा ने मनमोहन को निर्भय बनाने के लिए क्या संदेश दिया? जो 10 काम का करता है उसे भूत क्या बिगाड़ सकता है? मुठिया वसूलना मुहावरे का अर्थ है नेक काम के लिए अनाज की भीख मांगना। भला चंगा शब्द का अर्थ है स्वस्थ। पखेरु शब्द का अर्थ है पक्षी। अर्दली किसे कहते हैं? तो किसी बड़े अफसर का सेवक। निशब्द का अर्थ है सन्नाटा। प्रियोदा के दल के सदस्य बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे करते थे? तो जब तक वहाँ चंगा न हो जाए दल सेवा में जुटा रहता था। हॉल्ट शब्द का अर्थ है रुको। अपशब्द का विलोम क्या होगा? सुवचन। प्रियोदा कैसा लड़का था? सेवाभावी और निर्भय। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को निर्भयता और सेवा के गुण का विकसित करना। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों અહીં સુધી આપણે રાખીએ। હવે પછી આપણે ભારત ગૌરવ નામનો જે પાઠ છે ત્યાંથી નવા વિડીયોમાં છે એ પ્રશ્નો જોઈશું। તો વિડીયો તમને સારો લાગે મિત્રો તો લાઇક શેર કરો, ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારી સાથે જોડાયેલા રહો।